زیادہ اور سیلڈ کھائیں آپ، دودھ دہی کا استعمال رکھ سکتے ہیں. لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ دودھ دہی یعنی کہ دودھ تو اتنا مہنگا ہے، تو 1 کپ دودھ کا استعمال رکھیں اور اچھے طریقے سے اس کو پئیں ضرور. اور واٹر انٹیک اچھا ہونا چاہیے ان لوگوں کا، پانی بوائل کر کے پئیں. ہمارے دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے منرل واٹر استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اور دوسرا پانی استعمال کرتے ہیں. سب سے بہترین جو پانی رہتا ہے وہی ہوتا ہے کہ پانی لے کر اسے بوائل کر لیا جائے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر استعمال کیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. چلے یہ تو بات ہو گئی اپنی دانوں کے حساب سے. یہ کچھ سوال کریں گے، رمضان کی طرف آئیں گے. تو آپ نے جب پہلا روزہ رکھا تھا تو اس کی عمر بتائیں گے کہ آپ کی عمر کیا تھی اور روزہ کیسا رہا وہ؟ اچھا، میں ماشاءاللہ جب میں نے پہلا روزہ رکھا تھا تو جو ہے میری چھوٹی بہن ہے روبی، تو ہم دونوں کا یعنی کہ روزہ ایک ساتھ رکھا گیا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا اہتمام کیا گیا تھا. میری عمر آئی تھنک میں 9 یا 10 سال تھی. اور ضد تو میں بہت پہلے کر رہا تھا، لیکن یہ تھا کہ گھر والوں نے کہا کہ 9-10 سال کی عمر میں میرا روزہ رکھا گیا. ماشاءاللہ بہت اہتمام کیا گیا تھا. بہت سارے عزیز دوست احباب آئے ہوئے تھے، رشتہ دار تھے، اور پورا باقاعدہ یعنی کہ پھولوں کا اور جو ہے نوٹوں کا کنٹھا اس وقت میں زیادہ افطاری میں تو جو ہے ماشاءاللہ بہت کچھ تھا. لیکن یہ ہے کہ پرسنل جو گفٹس وغیرہ تھے نا، بس یہ تھا کہ جلدی سے جو ہے افطار کرنے کے بعد اپنے گفٹ کھولوں اور دیکھوں کہ کیا کیا آیا ہوا ہے وہ کر کے. اور پراپر طور پہ ہمارے جو ماشاءاللہ مولوی صاحب تھے جنہوں نے مجھے قرآن شریف پڑھایا تھا وہ موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے افطار سے پہلے دعا کرائی، اور ماشاءاللہ بہت خوش و خضوع سے. ماشاءاللہ. تو مولوی صاحبوں کی بات ہوئی تو ناگ خان کے پاس چلتے ہیں. محمد عباس صاحب کیا سنائیں گے؟ کون سی نعت سنائیں گے آپ ہمیں؟ ہو جائے انشاءاللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. ضرور انشاءاللہ. پنجابی کلام آپ نے پسند فرمایا، انشاءاللہ کہ چند اشعار پڑھتے ہیں انشاءاللہ. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. گدا میں بھی تیرے دردا کہاواں یا رسول اللہ. گدا میں بھی تیرے دردا کہاواں یا رسول اللہ. میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں یا رسول اللہ. میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. جو ہے آپ نے تو واقعی ایسا سحر باندھ دیا کہ دل چاہ رہا تھا کہ ختم ہی نہ ہو آپ کی نعت اور آواز. ماشاءاللہ اتنا سوز اور اتنا بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو سنے گی اپنے قبول فرمائے. اللہ اصل میں ویورز کے بھی چند لائیو کال کرے ڈاکٹر صاحب کے سوال کرے سو تھا آسان سوچو آواز بھائی بیٹھوا ہے
तव्हां इन्हनि खां बि का नात जी फरमाइश करे सघो था, ज़रूर तक नातो ॿुधाईंदा। अच्छा सर, एक सवाल आया था अभी, एक SMS पे किसी कॉल भी आई थी, तो वो लतीफ़ाबाद से आई थिंक शाबान नहीं, शाहगुल आई थिंक, उन्होंने कॉल की थी कि बोला 10 जब आखिरी जो अशरा आता है उसमें इक्तिकाफ़ में लोग बैठते हैं, कोई 10 दिन बैठता है, कोई 3 दिन बैठता है, इसमें फ़र्क कुछ? अच्छा, ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँ कि पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आलिम नहीं, एक नात खान हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बता दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सोबत में बैठकर इतना सीखा कि आपको ये इसका जवाब इंशाल्लाह मैं प्रॉपर दे सकता हूँ कि 10 दिन एहतिकाफ बैठना जो है वो मसनून है, और बाकी आप चाहे 3 दिन बैठ जाएं, चाहे 5 दिन बैठ जाएं, वो एक नफली इबादत है, इसमें हर एक इंसान बैठ सकता है। और एहतिकाफ में ये भी है कि अगर एक इलाके की मस्जिद में एक ही फर्द अगर बैठ जाए तो वो सारे इलाके की तरफ से वो एहतिकाफ अदा हो जाए, लेकिन अगर एक शख्स भी ना बैठे तो वो सारा उसका जो गुनाह होगा वो सबके इलाके पर होगा। ज़बरदस्त, तमाम प्यारियूं ॻाल्हियूं असां सां करे रहिया आहिनि मोहम्मद अब्बास साहब। पर नाज़रीन कारे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो, मिलंदासीं नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक व्यूवर्स, तव्हांखे इफ्तार विद आवाज़ में भली कार था चऊं, ऐं हींअर माशाल्लाह सभिनी दोस्तनि जा रोज़ा वोज़ा खुली विया आहिनि, ऐं रोज़ो खोले फ्रेश थी विया आहिनि, ऐं असांजो प्रोग्राम ऐं रोज़े जेमहिल खुलियो पिए त ओॾी महिल मूंखे हिकिड़ो फ़ोन आयो, मूंखे बि हिकिड़ी ॾाढी ख़ुशी थी। हिकिड़े हमारा चयो फ़ोन करे मूंखे चयो त बसि हाणे उहो कमु करिणो आहे, हाणे वॾी मां महिरबानी आहे, ॾाढो सुरायत आहे हुनजो। असां वेंदे नात ख़्वाह जी तरफ़, असां पर नात ख़्वाह खां पहिरीं मां डॉक्टर साहब खां सवाल कहिड़ो पूछो, या आई थिंक को सवाल हो। डॉक्टर रिजवान साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने जिन लड़कियों को आप सिखा रहे हैं, पूरा पैकेज है, तो काफ़ी सारी लड़कियां जो आपसे आपके पास आएंगी सीखने के लिए, तो उनमें आईब्रोज़ हैं, ब्लीच है, पेडिक्योर है, हेयर कटिंग है, फेस पॉलिश है, इतनी सारी चीज़ें, तो एक आप अपने कस्टमर को कितना टाइम वेस्ट करते हैं, एक पे कितना टाइम लगता है मतलब आपका? देखिए, जो यानी कि सर्विसेज के लिए जो ख़वातीन आती हैं, जो हमारा पैकेज है 1500 वाला, इसके लिए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है। 2.5 से 3 घंटे का टाइम, क्योंकि इसमें पेडिक्योर है, हेयर कटिंग है, ब्लू ड्राई है, और प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट है, स्किन बाइटिंग जो है फेशियल है, और काफ़ी बैक से लेग बैक से है, और थ्रेड है, बिल्कुल अपर लिप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, तो यानी बाकी 2.5 से 3 घंटे। ख़वातीन जो जिनके लिए हमने अभी अनाउंस किया था, जो हमारे नए देखने वाले भी सुन सकते हैं, कि 10 ख़वातीन ऐसी जो यानी कि सैलून का काम सीखना चाहती हैं, ख़ासतौर पर मेकअप का, हेयर कटिंग हो, या जो है मेकअप की चीज़ें हैं, ये अगर सीखना चाहें, ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा ये परेशानी ज़्यादा होती है कि हेयर स्टाइल कैसे बनाएं, हेयर स्टाइल कैसे बनाएं। खासतौर पर ये भी चीज़ होती है कि सेल्फ ग्रूमिंग आनी चाहिए जी। वैसे तो प्रॉपर तौर पर हमारा इंस्टीट्यूट है, लेकिन आवाज़ टीवी की जानिब से 10 ऐसी ख़वातीन जो यानी कि इसको सीखना चाहें, उनके लिए यानी कि फ्री है। बस उनको ये है कि थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए कि फेशियल की जो है कितनी तरह का होता है, किस तरह करते हैं, मेकअप में बेस किस तरह लगाया जाता है, और इतनी हावनाव होना चाहिए, बिल्कुल एकदम नील नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए हम आगे बढ़ने के मौके नहीं, वो तो माशाल्लाह से आजकल ऐसा दौर चल रहा है कि हर लड़की और हर लड़का बहुत ही एक्टिव है, उनको बिल्कुल नॉलेज है कि मेकअप कैसा होता है, हेयर कटिंग कैसे होती है। जाहिर बात है, आप लोगों को प्रोग्राम ही इतना खूबसूरत होता है, फिर आप जो गेस्ट बुलाते हैं, कॉल भी आ गई है, गेस्ट की आपने नाम तो कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं वालेकुम सलाम। साईं केर पे गलर? करम अली बात कर रहा हूँ मैं, कराची से। जी, करम अली भाई कैसे हैं आप? आप अपने टेलीविजन का आवाज कम कर दे। जी जी जी, करम अली साहब कैसे हैं आप? मुझे सर अब्बास से फरमाइश करनी थी। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आवाज आ रही है बिल्कुल आपकी? जी जी आ रही है। आप फरमाइश बताइए कौन सी? इनसे फरमाइश करनी थी मुझे, अब्बा जी की नात की, चांद से बढ़कर। जान से नात है, चलिए आपको सुना देते हैं। आपकी मेहरबानी, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की, शामिल हुए, अल्लाह हाफिज। बस थोड़े से चंद लफ्ज़ आप सुना दे। जी, जो फरमाइश हुई ब्रेक के बाद सुना दे तो अच्छी बात है। ब्रेक के बाद ब्रेक खां पोइ ज़बरदस्त नात ॿुधंदासीं, ऐं ब्रेक खां पोइ असां गॾु आहियूं इफ्तार विद आवाज़ में। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, अवां सभिनी खे भलीकार चवंदासीं। प्रोग्राम अवतार विथ आवाज़ में असांजा महिमान बि मौजूदु आहिनि असां वटि, डॉक्टर रिज़वान साहब ऐं उन खां अलावा असांजा तमामु बहितरीन नात ख़्वान मोहम्मद अब्बास सहूर वर्दी साहब भी मौजूद हैं। तो उनकी तमाम घनी मेहरबानी असांजे प्रोग्राम में आया। डॉक्टर रिज़वान साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपने कीमती टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक्स। टाइम पे याद आया तो आप अपने ब्यूटी सैलून की टाइम भी बता दें और एड्रेस भी बता दें, जिससे हमारे व्यूअर्स वहाँ पे आपके पास पहुँचें। बिल्कुल, देखिए हमारा अप्सरा ब्यूटी सैलून जो है गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 के अंदर है और जो है सिंबाद के बिल्कुल नियरेस्ट है। और टाइमिंग उसके जो है रमज़ान में अभी फ़िलहाल जो चल रहे हैं वो 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के हैं। अच्छा। और 15 रमज़ान के बाद जो है उसके टाइमिंग हो जाएंगे 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक के। 9 बजे तक, ठीक है। अच्छा, रमज़ान की ये टाइमिंग है। वैसे आम टाइमिंग क्या होती है उनकी? आम टाइमिंग जो है तकरीबन 12 बजे से लेकर और रात 9 बजे तक की टाइमिंग है। अच्छा, उसमें आप भी होते हैं उसमें? जी बिल्कुल, क्लिनिक आवर्स जो हैं हमारे 3 घंटे के होते हैं, तो वो जितने भी हमारे पेशेंट होते हैं वो अपॉइंटमेंट पहले ले लेते हैं। मेरी असिस्टेंट है महविश, जो है उन पे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे होते हैं उस पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। क्योंकि जो आवाज़ टीवी की जानिब से जितने भी हमारे पेशेंट्स वगैरह आते हैं उन पे जो है 10% का डिस्काउंट होता है। अच्छा, ठीक है। कंसल्टेंसी फीस कोई नहीं है, मशवरा और मायना ऑलरेडी फ्री है जी। बाकी जो यानी कि डिजीज़ होती है, जैसे मोटापे की कोई प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की है, हेयर फॉलिंग की है, जॉइंट्स पेन की है, स्किन डिजीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, एक्नी है, फ्रैकल्स हैं, इसके लिए अगर वो आना चाहते हैं तो वो वेलकम। मैं एक बार फिर आपसे चाहूँगा कि जो आपने ऑफ़र निकाली है अभी रिसेंटली, आपकी जो ऑफ़र चल रही है, जो अभी आप जो आपकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं 10 साल हो गए, तो जो ऑफ़र दे रहे हैं, जो ऑफ़र आप दे रहे हैं तो उनके वो बारे एक में बार रिपीट कर देंगे उसमें क्या बल्कि क्या उनसे पहले ये भी पूछना चाहेंगे कि सैलून का एड्रेस क्या है, आप एड्रेस भी बता दें, ये कौन सी जगह पे, कौन से एरिया पे? ठीक है। एड्रेस जो है गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में है, R48 नंबर है और यहाँ 12 बजे से लेकर रात तकरीबन 9 बजे के दरमियान आ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट ज़रूरी है क्योंकि एक क्लाइंट पर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है। और स्पेशल ऑफ़र जो हमारी चल रही है वो ये है कि 1500 में आपको 14 सर्विसेज फ्री दी जा रही हैं, जिसमें फ्रेंच पेडिक्योर है और स्किन वाइटनिंग, ग्लो फेशियल है, हेयर कटिंग है, प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट है, वैक्स है और जो है मेहंदी है और आईब्रो है, काफी सारी चीजें, मेहंदी है, तमाम यानी कि आपको वो चीज़ें जो यानी कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, हर ख़ास व आम के लिए ये ऑफ़र जो है महदूद मुद्दत तक के लिए है, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आएँ और जो है अपनी बुकिंग करा के, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक घर से तकरीबन 4-4, 5-5 ख़वातीन भी आती हैं, तो अब ज़ाहिर बात है उसके हिसाब से फिर अपॉइंटमेंट दी जाती हैं कि क्या है। बाकी ऐसी ख़वातीन जो यानी कि गरीब हैं या जिन्हें सीखने का शौक़ है और उनके पास वो अवेल नहीं कर सकती, कॉल आ गई आपके लिए, कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या आप बहुत अच्छी पढ़ते हैं। ये माँ वाली नात जरा सुनाने की फरमाइश थी कि अगर आप माँ वाली नात सुना दें। माँ वाली नात सुना दें। ठीक है, थैंक यू, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया। अल्लाह हाफिज़। ये मोहम्मद अब्बास साहब के लिए कॉल, डॉक्टर साहब के लिए कॉल थी, पर वो हम अब्बास भाई के लिए कॉल थी। जो है क्या नाम है, माशाल्लाह उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि जब यानी कि वो पढ़ते हैं तो और फिर जब हुज़ूर सल्लम का जिक्र हो तो वहाँ तो वो इतने मलाइका और जो है जमा हो जाते हैं, बिल्कुल फरिश्ते उतर के आते हैं, जो है इतनी बाबरकत साथ हैं कि जितना लूट सकें लूट लें। हमारे साथ तो मौजूद हैं, हम तो चाहेंगे कि और खास तौर पे आपकी ऑफर से भी फायदा ले लें। माँ की शान में कुछ सुनाइए प्लीज। इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। माँ की शान जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहां में बढ़कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर, माँ तो माँ है, सुभान अल्लाह, माँ तो माँ है। जिसने तुमको जन्म दिया है और जिसने तुमको पाला, वक्त न देखा अच्छा बुरा और फिर भी तुमको संभाला,
دکھ جھیلے ہیں کیسے کیسے دل پر رکھے پتھر، پیر کتب ابدال قلندر، اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے۔ ماں والو تم خوش قسمت ہو کہ زندہ تمہاری ماں ہے۔ ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے۔ جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے۔ اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر، اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر۔ پیر کتب ابدال قلندر، اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماں کی شان میں آپ نے جو ہمیں بتایا سنایا، بہت ہی سکون ملا۔ واقعی خوش نصیب ہم ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری مائیں ہیں۔ الحمدللہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جن کے ساتھ ماں ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے نا بہت احترام، عزت اور بہت اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، اور ان کی ہر یعنی کہ حکم ماننا چاہیے۔ باقی جن کے پاس ماں نہیں ہوتی ہیں، اب جیسے میری والدہ کا ابھی 2 سال پہلے ہی یعنی کہ ڈیتھ ہوئی ہے، تو یقین کریں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتے ہیں۔ ماں باپ جب تک موجود رہتے ہیں جب تک تو سب کچھ رہتا ہے، لیکن اس کے بعد ایسا ہی خلا ہوتا ہے کہ جو ہے اس ایمٹی کو کوئی بھی فل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی والدین کو سلامت رکھے، جو والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، آپ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمیں جوائن کریں بہت گے، شکریہ۔ اور بہت اچھی آفرز دے رہے ہیں آواز ٹی وی کی جانب سے، اپنی طرف سے بھی Thank بہت ہم you۔ شکر گزار آپ کے۔ عباس بھائی، اب جاتے جاتے ہمیں خوبصورت کوئی نعت من سنا کا دیں۔ بت جی ऐं व्यूअर्स तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। तव्हां प्रोग्राम स्टार विथ आवाज़ सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु जी बिल्कुलु। पंहिंजी होस्ट समूह खे छा खे ॾींदा इजाज़त। فاصلوں کو خدا را مٹا دو غوث الاعظم، فاصلوں کو خدا را مٹا دو غوث